Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, this is your chapter 10th, Water Resources. Or in this chapter, today we discuss here need for irrigation and means of irrigation. हमें need क्यों है irrigation की और irrigation के main source कौन से हैं we discuss here today in this lecture. Okay, and in this chapter we already discussed in the last video introduction part of water sources and water sources of India, and after we discuss what is the irrigation or importance of irrigations, and today we discuss here need for irrigations. Okay, so first of all, before start this need for irrigation, what is the irrigation? Irrigation means the process of supplying water to crops by artificial. जब हम ह्यूमन एफर्ट के थ्रू आर्टिफिशियली वाटर प्रोवाइड करवा रहे हैं क्रॉप्स को, ओके, दैट कॉल्ड irrigation. Okay, so we discuss here need for irrigation. The need for irrigation in India arise from the following reasons. बहुत सारे cause है, one by one we discuss here all the point. Okay, first point, variability in rainfall. Variability in rainfall means हमारी कंट्री में जो रेनफॉल हो रही है, here we talk about our country India, uncertain. और हमारी कंट्री में जो रेनफॉल होती है वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, सीजन टू सीजन. सो इन सम एरियाज वेयर मैक्सिमम रेनफॉल अकर एंड सम एरिया वेयर मॉडरेट और सम एरिया देयर वेयर वेरी लेस रेनफॉल. तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें नीड पड़ती है इरिगेशन की. ओके, सो वही हम डिस्कस करेंगे कि रेनफॉल इन इंडिया इज वेरी अनसर्टेन, श्योरिटी नहीं है कब होनी है, एंड विच इंक्रीज द एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड मेक क्रॉप प्रोडक्शन रेदर डिफिकल्ट. द मीन्स हमारे लिए एक रिस्क क्रिएट हो जाता है कि अगर रेनफॉल ना हुई तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छी नहीं होगी. सो नॉर्मल रेनफॉल इज मार्क्ड बाय इट्स वाइड फ्लक्चुएशन ऑफ डिफरेंट पार्ट एज आल्सो वेरिएशन फ्रॉम सीजन टू सीजन एंड ईयर टू ईयर इन इट्स क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन. की रेनफॉल कितनी हो रही है और कितनी देर हो रही है. ठीक है, ये ऑलवेज फ्लैक्चुएट होती रहती है, वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू प्लेस और सीजन टू सीजन. ओके, इफ वी सी द मैप, दिस योर इंडिया मैप. सो दिस योर वेस्टर्न घाट. तो नेचुरल बात है वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड हैवी रेनफॉल होती है. आफ्टर दैट दिस पोर्शन हैवी रेनफॉल एंड this portion get heavy rainfall, and in the middle part here moderate rainfall, or arid region very less rainfall. This is your rain shadow area, especially Karnataka or Andhra Pradesh, and this region almost dry region. So here we need irrigation facility. Okay, so the uncertainty compel irrigation to be provided. कि हमारी कंट्री में जो रेनफॉल है अनसर्टेन हो रही है और ये वेरी करती है प्लेस टू प्लेस और ईयर टू ईयर. ठीक है, और ड्यू टू दैट we need irrigation. Okay, so this uncertainty compel irrigation to be provided. Okay, and now unequal distribution of rainfall. तो वही बात हमने पहले भी की अगेन कि इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री 80% ऑफ द एनुअल रेनफॉल इज रिसीव्ड फ्रॉम जून टू सितंबर फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून. कि हमारी कंट्री जो है, दिस इज साउथ वेस्ट मानसून. सो न्यू अबाउट 80% जो रेनफॉल हो रही है हमारी कंट्री में बाय द मानसून हो रही है. और यू नो ऑल कि मानसून हमारे जून टू सितंबर ओनली 4 मंथ में अकर करते हैं. ओके, इन द 4 मंथ. सो in the most part of our country 80% of annual rainfall received from the June to September and by the southwest monsoon. So Saurashtra, Kutch region of Gujarat, western half of Rajasthan and part of Punjab and Haryana are in the arid zone where there is a constant deficiency of water. Means
This is your Saurashtra part. This is your Saurashtra part in Gujarat, and half of Rajasthan, and part of Punjab, or a little bit part of Haryana, or arid zone. Arid means dry zone है. Okay, so here we need water. यहाँ क्या deficiency of water है, water की कमी है. That's why we need here irrigation facility. And conditions very close. Same here. If we talk about leeward side, या we can say rain shadow area along the leeward side of Western Ghat from Karnataka or Andhra Pradesh, we also need water for irrigation because here very less rainfall. Okay, so this is a inadequacy of rainfall in these areas has to be made good by irrigations. So हमारी जो ड्राई रीजन है यहाँ पर हमें अच्छी क्रॉप्स लेनी है तो हमें नीड पड़ेगी वाटर की इरिगेशन की. ओके, एंड थर्ड पॉइंट, टू मीट क्रॉप रिक्वायरमेंट एंड सॉइल नीड. यू नो टू सम क्रॉप्स आर देयर जिन्हें नीड है ज्यादा वाटर की, एंड सम क्रॉप्स आर देयर where we need very less water. Okay, so according to that we need water irrigation. So different crops require different quantity of water supply. For example, crops such as rice, sugarcane, jute, cotton require more water and need irrigation even in area of heavy rainfall. Means some places are there where heavy rainfalls occur. In that conditions we need irrigation because these crops require more water. Okay, and need irrigation facility. And beside, sandy soils require frequent water supply than the alluvial or black soil. अगर बात करें हम soil की तो in the soil formation also same कि some soil are there where need more water. If we talk about sandy soil, तो sandy soil में require water की supply की ज़्यादा need पड़ती है as compared to alluvial or black soil. Okay, so to meet crop requirement और soil need के according हमें need पड़ रही है irrigation facility की. Okay, so your third point, to meet crop requirement and soil need. Okay, and now we discuss here fourth point, to maximize productions. अगर हमें प्रोडक्शन अच्छी लेनी है तो नेचुरली बात है हमारे पास वाटर की फैसिलिटी होना जरूरी है. टू गेट हाई yield and maximum production from land and to facilitate double and triple cropping, irrigation is a must. कि मीन्स अगर मैं अच्छी प्रोडक्शन लेनी है, मैक्सिमम प्रोडक्शन लेनी है लैंड से और उस अपने क्रॉप्स को हमने डबल और ट्रिपल में कन्वर्ट करना है तो इरिगेशन इज अ मस्ट. तो वाटर जरूरी है दैट क्रॉप के लिए. ओके, इरिगेशन जरूरी है. सो टू गेट एफिशिएंट यूज ऑफ यूटिलाइजेबल फ्लो कि मीन्स जो वाटर हमारे पास अवेलेबल है उसका प्रॉपर्ली यूज करना. ओके, और क्यों करने जैसी है, मैनी ऑफ इंडियन रिवर्स आर नॉट पेरिनियल. पेरिनियल मीन्स जिसमें थ्रू आउट द ईयर्स पानी रहता है उनको पेरिनियल रिवर्स. और नॉट पेरिनियल, नॉन पेरिनियल मीन्स जिनमें पूरा साल पानी नहीं रहता है. तो हमारे इंडिया की जो मैक्सिमम जो रिवर है वो नॉट पेरिनियल, वो पूरी तरह पेरिनियल नहीं है बिकॉज those rivers are originated in Himalayas, वही के है perennial है. अदरवाइज इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो रिवर्स हैं दिस ऑल ऑन बेस्ड ऑन रेनफॉल. अगर रेनफॉल होगी उसमें वाटर जाएगा, अदरवाइज ये ऑलमोस्ट ड्राई हो जाती है. ओके, सो मेनी ऑफ इंडियन रिवर्स आर नॉट पेरिनियल एंड दे कैरी इनसिग्निफिकेंट फ्लो ड्यूरिंग द रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स मीन्स इन विंटर, और इन विंटर में आपकी वीट क्रॉप्स होती है. ओके, वीट जो ग्रो करती है इन दैट टाइम विंटर सीजन में, रबी सीजन में, विंटर सीजन में आपकी जो रिवर्स होती है इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में तो वहां पर वाटर बहुत कम हो जाता है. ओके, इट इज आल्सो अ वाइड डिस्पैरिटी इन द वाटर फ्लो फ्रॉम ईयर टू ईयर. और एवरी ईयर टू ईयर सम टाइम हैवी अच्छी रेनफॉल होती है तो वाटर क्वांटिटी इंक्रीज होती है, और सम ईयर अगर रेनफॉल प्रॉपर अच्छी ना हो तो आपकी क्वांटिटी ऑफ वाटर डिक्रीज होती है. तो ईयर टू ईयर भी वेरी करती है. सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न रिवर, जो हमारी सेंट्रल और सदर्न रिवर्स है, इज दैट अबाउट 80 to 90 ऑफ द एनुअल रन ऑफ टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द 4 month. कि यहाँ पर जो रिवर्स फ्लो कर रही है ये जो वाटर ले रही है बाय द मॉनसून इन द 4 month, जून टू सितंबर. ओके, और ऑलमोस्ट जो 8 month हमारे वो ड्राई रह जाते हैं. ओके, सो इट इज
obviously obvious is therefore to make use obvious है कि हमें उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन साइजेबल पोर्शन ऑफ एवरेज का यूज करना चाहिए ताकि वाटर हमारा लॉन्ग टाइम तक हमारे पास रहे. ओके, सो the characteristics of central and southern rivers is that about 80 to 90 of the annual runoff take place during the 4 month means June to September. Okay, and by the monsoon rains the rivers are largely dry during the 8 month of the year. It is obvious therefore to make use of sizable portion of the average and the supplement supply even in the good rainfall areas. अब जी देखो कुछ एरियाज ऐसे हैं वेयर हैवी रेनफॉल्स अकर हो रही है, इन दैट कंडीशन वी आल्सो नीड अ इरिगेशन फैसिलिटी. अब सप्लीमेंट सप्लाई और वाटर की नीड क्यों पड़ रही है हमें? बिकॉज यू नो टॉकिंग द रेनी सीजन आल्सो कि सम टाइम क्या होता है कि रेनफॉल अकर होती है उसमें भी गैप पड़ जाता है 5 6 7 डेज का, तो इन बिटवीन रेनफॉल नहीं होती और सम क्रॉप्स आर देयर दोज आर नीड more water. So according to that, we need supplementally we can supplement supply of water even good rainfall areas. So in the good rainfall areas, irrigation is required mostly as a supplemental need to protect single crop agriculture against occasional drought. कि sometime in a heavy rainfall में occasionally drought पड़ जाता है. In that condition, we also need irrigation facility. Okay, so now this is your need. The main 6 point here we discuss here. First, variability of in rainfall. Second, unequal distribution of rainfall. After that, to meet crop requirement and soil need. Fourth point we discuss here, to maximum production and to get efficient use of utilizable flow. And last point we discuss here, the supplement supply even in good rainfall areas. Okay, and now next topic, means of irrigation. Firstly, we discuss this point. After that, we discuss method of primitive or modern irrigation. So, means of irrigation means source of irrigation. So, different source of irrigation are used in India depending upon the topography, soil, rainfall, availability of surface or groundwater. Means हमारे पास source of irrigation जो है इंडिया में it depend on टोपोग्राफी, लैंडफॉर्म फीचर कैसा है, माउंटेन्स हैं, प्लेस हैं, प्लेटिस, अकॉर्डिंग टू दैट सॉइल कैसी है, रेनफॉल कितनी हो रही है एंड अंडरग्राउंड वाटर लेवल कितना है, अकॉर्डिंग टू दैट हमें फैसिलिटीज मिलती है सोर्स ऑफ इरिगेशन की. ओके, सो द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री दैट इज वेल, ट्यूबवेल, कैनाल्स और टैंक. दिस आर द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन अवर कंट्री. ओके, और वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो कि व्हाट इज द वेल, टाइप्स ऑफ वेल, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ वेल, सेम इट इज ट्यूबवेल और कैनाल, टैंक आल्सो वी डिस्कस इन दिस चैप्टर. ओके, सो वी डिस्कस हियर लास्ट टॉपिक हियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. देयर आर टू मेथड ऑफ इरिगेशन, एक तो प्रिमिटिव और मॉडर्न. प्रिमिटिव मींस एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम में जो हम मेथड यूज करते हैं इरिगेशन के लिए वो हम डिस्कस करेंगे. और मॉडर्न मींस लेटेस्ट, टुडे हम कौन से ऐसे सोर्सेज ड्यू टू दैट हम इरिगेशन कर रहे हैं. ओके, सो इरिगेशन प्रैक्टिस इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, प्रिमिटिव और मॉडर्न. सो प्रिमिटिव और मॉडर्न. प्रिमिटिव मेथड इंक्लूड वेल्स, टैंक एंड इनअंडेशन कैनाल. एक होती है कैनाल और सेकंड इज इनअंडेशन कैनाल. सो एक तो पेरिनियल कैनाल्स होती हैं जिसमें थोड़े पानी हो, और इनअंडेशन कैनाल्स मींस होता है सपोज करो आपकी ये मेन रिवर है. ओके, एंड टुडे वी है क्या होता है कि हम यहाँ पर पर्टिकुलर में कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम कर देते हैं, तो बिहाइंड द डैम एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्ट हो जाता है और यहाँ से हम एक कैनाल्स निकालते हैं और ये कैनाल जो होती है परमानेंट वाटर सप्लाई होती है. ओके, क्योंकि यहाँ डैम है और डैम के बिहाइंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्यूमुलेट हुआ है, इकट्ठा हुआ है, एंड वहाँ से हम सप्लाई करें दोज एरिया वेयर शॉर्टेज ऑफ वाटर है. ओके,
तो ये जो होती है पेरिनियल होती है कैनाल, पेरिनियल मींस थ्रू आउट द ईयर्स पानी होता है। और इन अनडेशनल कैनाल्स होती है कि मींस दिस योर रिवर्स, और इस रिवर पे क्या होता है, डैम कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, और यहाँ से आपकी एक रिवर, एक स्मॉल कैनाल क्रिएट की जाती है टूवर्ड्स द फील्ड। बट कंडीशन क्या है, इसमें क्या होता है कि आपका जो रिवर है जब वाटर लेवल्स में लो रहेगा तो उसमें पानी नहीं आएगा। ओके, और जैसे रेनी सीजन स्टार्ट होगा आपका रिवर का जो फ्लड आएगा तो वाटर राइज करेगा, वाटर राइज करेगा तो वो इस कैनाल में वाटर सप्लाई अनदर एरिया में चली जाएगी। ओके, इसको इन अंडेशन कैनाल्स। कि पुराने टाइम में हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम नहीं होते थे, सो आपकी रिवर में जब पानी की शॉर्टेज होती थी तब यहाँ वाटर सप्लाई नहीं जाता, लेकिन जैसे आपका रेनी सीजन होता है आपका रिवर का वाटर राइज करता है, और राइज होने के बाद आपका वाटर इस कैनाल में मूव करना स्टार्ट कर जाता है, इसको बोलते हैं हम इन अडेशन कैनाल्स। ओके, सो प्रिमिटिव मेथड इंक्लूडिंग पुराने समय में क्या यूज करते थे, वेल यूज करते थे एंड टैंक यूज करते थे, और इन अडेशन कैनाल्स। ये कैनाल्स होती है, इसमें पानी जो होता है ओनली विंटर से, सॉरी आपका ओनली रेनी सीजन में आता है, क्योंकि रेनी सीजन में आपका रिवर का फ्लो ज्यादा होगा, क्योंकि ये रिवर के अपर पार्ट में ही ऑरिजिनेट होती है, और जब वाटर डाउन चला जाता है तो ये ड्राई हो जाती है, और जब वाटर लेवल राइज करता है तो ये वाटर से फिल हो जाती है। तो हमें इसका लॉस दिया था कि इसका बेनिफिट प्रॉपरली नहीं मिलता। बेनिफिट क्यों नहीं मिलता था, क्योंकि जब ड्राई सीजन में हमें नीड होती थी तो वाटर लेवल लो होता है और यहाँ पानी नहीं आता, क्योंकि यहाँ वाटर कब आता है, रेनी सीजन में जब फ्लड आते हैं, और दैट कंडीशन में हमें वाटर की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, सो दिस वाज द प्रिमिटिव मेथड, और टुडे भी हमारे पास जो नया मेथड है वो क्या है, कैनाल्स। ये इन अनडेशन कैनाल, और ये दूसरी कैनाल है बाई कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, जहां से हम पेरिनियल कैनाल्स थ्रू द पानी सप्लाई होता है, तो बाई द कैनाल और ट्यूबवेल। आज के टाइम में ट्यूबवेल आ गए बेल की जगह। ओके, एंड दे कैन बी यूज टू इरिगेट स्मॉल एरिया। जो ये पुराने मेथड थे वेल, टैंक और इन अडेशन कैनाल्स, ये इरिगेट करते थे, वाटर सप्लाई करते थे ओनली एक स्मॉल एरिया को। ओके, और दे कैन यूज टू इरिगेट लार्ज एरिया। हमारे जो कैनाल्स और ट्यूबवेल हैं एक लार्ज एरिया को इरिगेट कर सकते हैं, वाटर सप्लाई दे सकते हैं। ओके, एंड थर्ड डिफरेंस, दे डोंट नीड मॉडर्न मशीनरी टू विल और ऑपरेट। कि प्रिमिटिव मेथड में बेल से पानी निकालने के लिए हमें, या टैंक से पानी निकालने के लिए कोई मॉडर्न मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोटर की जरूरत नहीं पड़ती थी। दैट टाइम विद द हेल्प ऑफ रोप हम पानी बाहर निकाल लेते थे। ओके, लेकिन यहाँ टुडे जो हमारे पास न्यू मॉडर्न टेक्निक है, यहाँ पर मशीनरी की नीड पड़ रही है, मशीनरी की, मोटर की जरूरत पड़ रही है डीप इंसाइड से वाटर बाहर निकालने के लिए। ओके, सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द प्रिमिटिव और मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। फर्स्ट इज प्रिमिटिव मेथड कौन से, वेल, टैंक और इनडेशन कैनाल, और मॉडर्न कैनाल और ट्यूबवेल। एंड सेकेंड पॉइंट, दे कैन बी यूज्ड टू इरिगेट स्मॉल एरिया, और दे कैन बी यूज्ड इरिगेट लार्ज एरिया। मॉडर्न लार्ज एरिया को इरिगेट कर रहे हैं और प्रिमिटिव स्मॉल एरिया को कर रहे हैं, और दे डोंट नीड मॉडर्न मशीनरी in the primitive method, or in the modern way they need modern machinery. Okay, so today we discuss here uh, need for irrigation, and after that differentiate between the primitive or modern method or means of irrigation. Thank you.